Assalamu alaikum. Today we are going to start lecture number 21, which is about power series, Taylor and Maclaurin series. In the previous lecture, we have studied about infinite series, geometric series, convergence and divergence of geometric series, comparison test, ratio test, root test, convergence test, alternating series, absolute and conditional convergence, and P series. In today's lecture, we will study about power series, convergence of power series, test of convergence by ratio test, radius of convergence of power series, Taylor and Maclaurin series, Taylor and Maclaurin polynomial. After going through today's lecture, you will be able to write the power series of a function. You'll be able to represent the function in terms of series. You'll be able to use the Taylor and Maclaurin series of a function where it required. Let's start with power series. Power series about x is equal to 0 is a series of this form. This form is power series at x is equal to 0. A power series about x is equal to a is a series of this form. ठीक है, जैसे अगर at x is equal to 0 mean x minus 0 power n. If we are interested in power series about x is equal to a, then it is x minus a power n. Here c and all c and are constants and coefficients, and these are variable x and taking in example 1, taking all the coefficients to be 1 in equation 1 gives the geometric power series. ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है, इसमें अगर हम सारे कोफिशिएंट्स को 1 ले लें तो हमारे पास ये पावर सीरीज बनती है, एंड दिस इज ज्योमेट्रिक पावर सीरीज. इन दिस पावर सीरीज, ज्योमेट्रिक पावर सीरीज, a is equal to 1 and ratio r is equal to x. Ratio is x. Ratio of consecutive terms is x. So it converges to the value a divided by 1 minus r, which is 1 divided by 1 minus x. This is sum of this series, and it is converges for in geometric series converges for absolute value of r less than 1. Here r is x, so this geometric power series converges for absolute value of x is less than 1. So the sum of this geometric power series is 1 divided by 1 minus x. In example 2, we have power series at a where a is 2. Now here first term of this geometric series is 1 and radius r is ratio r is minus x minus 2 divided by 2. So the sum of this series, or it is converges to the value a divided by 1 minus r is equal to 1 divided by 1 plus x minus 2 divided by 2. So it is basically 2 divided by x. So the sum of this geometric series is 2 by x, and it is converges for any geometric series converges for absolute value of r is less than 1. Here absolute value is minus x minus 2 divided by 2 is less than 1. That is basically x minus 2 divided by 2 is less than 1,
x माइनस 2 इज लेस देन 2, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ here x is, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, -2 to 2। एब्सोल्यूट वैल्यू जो हम इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 इज़ लेस देन x minus 2 is less than 2, so it is 0 x less than 4, ठीक है। ये 2 इस साइड पे जाएगा तो 0 आ जाएगा, इस साइड पे आएगा तो 4 आ जाएगा। सो दिस geometric power series converges for x 0 to 4 and its sum is 2 divided by x, so we can write it is equal to 2 divided by x for 0 to 4। ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। पी नॉट मीन्स ऑफ 0 डिग्री, इसमें हमारे पास 1 जस्ट कांस्टेंट आ जाएगा। P1 मीन्स फर्स्ट डिग्री, तो इसमें जस्ट हमारे पास फर्स्ट डिग्री टर्म तक हम इसको लिखेंगे। P2 मीन्स सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, तो हम इसको सेकंड डिग्री तक लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं 0, फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री। इसको आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। दिस इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल, दिस इज फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, दिस इज सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल एंड दिस वन पिंक वन इज 8th डिग्री पॉलिनोमियल। और फिर ये हमने देखें पूरी सीरीज का जब सम लिया है तो ये 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स है, यानी हम जितने ज़्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे वो उतना ओरिजिनल कर्व के क्लोज होगा। नाउ टेस्टिंग फॉर कन्वर्जेंस यूजिंग रेशियो टेस्ट। अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम रेशियो टेस्ट से इनकी कन्वर्जेंस को टेस्ट करेंगे। पहले हम ए पार्ट को करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास ये सीरीज गिवन है -1 रेज़ पावर n-1 x की पावर n डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज थी। ये हमारे पास सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज की कन्वर्जेंस हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में हम लोग n+1 एंड nth टर्म का रेशियो लेते हैं, ठीक है, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं और उस पर हम लोग n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे un+1 एंड un का जब हम रेशियो लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बच जाती है, ठीक है। ये आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा किस तरह से हमारे पास ये रेशियो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। ये हमारे पास रेशियो आ गया, इसको हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इस पे लिमिट अप्लाई होगी क्योंकि n यहीं पे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। दिस इज रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल लेंगे तो n डिवाइड बाय n ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज अप्रोचेस टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब हमारे पास रेशियो टेस्ट में कन्वर्ज कब करता है, जब ये वैल्यू रो की, यहाँ पे बेसिकली दिस इज रो की वैल्यू जब लेस देन 1 होती है तो हमारे सीरीज कन्वर्ज करती है, यानी फॉर x लेस देन 1 द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेस, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये बेसिकली इसको हम ओपन करें तो ये -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 बनता है। अब हमने बाउंड्री यानी एंड पॉइंट्स पे भी देखना है क्या ये सीरीज कन्वर्ज करती है या नहीं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 1 पे। जब हम 1 पे इसको चेक करेंगे तो 1 पुट करने से x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास सीरीज बन जाती है। ये देखें ये हमारे पास सीरीज है, इसमें जब आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये हमारे पास ये अल्टरनेटिव सीरीज बन जाती है, ठीक है।
और यूजिंग अल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करने से हमारे पास ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज कैसे करती है, ये बेसिकली हमारे पास 3 कंडीशंस हैं अल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट के, वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। एक तो हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज़ का कंडीशंस ये है कि हमारे पास जो प्रीवियस टर्म है वो नेक्स्ट टर्म से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 आंसर आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जितनी भी टर्म्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये तो अल्टरनेटिव साइंस हैं, ये अल्टरनेटिव सीरीज़ की वजह से, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वर्ज करती है सीरीज़। तो नाउ फॉर x इज इक्वल टू -1 जब हम x में यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास इधर भी -1 की पावर n-1 और इधर भी -1 की पावर n है। तो ये जब इकट्ठे होंगे तो ये हमारे पास बन जाता है -1 की पावर 2n-1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ये अब हमारे पास ऑड पावर, ये ऑड नंबर होता है 2n-1, यानी यहाँ से जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो ऑड नंबर होगा, यानी यहाँ पे हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय n आएगा, ठीक है। यानी हमारे सीरीज़ की जितनी भी टर्म्स हैं सारी नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो दिस इज़ नेगेटिव हार्मोनिक सीरीज़ और हमारे पास 1/n ये वाली सीरीज़ जो है ये हार्मोनिक सीरीज़ होती है और ये हमेशा डाइवर्ज करती है और नेगेटिव हार्मोनिक सीरीज़ भी डाइवर्ज करती है। सो एट -1 द सीरीज़ इज़ डाइवर्जेस, ठीक है। तो जहाँ पे डाइवर्ज करेगी वहाँ पे हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे और 1 पे ये कन्वर्ज करिए तो 1 पे इक्वल का साइन लगा देंगे। तो हमारी जो सीरीज़ है वो -1 से 1 के दरमियान कन्वर्ज कर रही है, जिसमें 1 इंक्लूडेड है और -1 इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह अब हम बी पार्ट पे जाते हैं। बी पार्ट में हमारे पास ये सीरीज़ है, अल्टरनेटिव सीरीज़ है, ठीक है। -1 पावर n-1 x पावर 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n-1, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज़ है, इस पे हम रेशो टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। रेशो टेस्ट में हमने ये वैल्यू फाइंड की तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को पे लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये पोलिनोमियल का रेशो है, तो इस पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 इज इक्वल टू 1 होती है। तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर आएगा विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो रेशो टेस्ट कन्वर्जेस फॉर less than 1, so it is converges for x square less than 1 and it is diverges for x square greater than 1, ठीक है। अगर less than 1 के लिए कन्वर्ज करिए तो ऑपोजिट के लिए डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं 1 और -1 पे। जब हम इस सीरीज़ में 1 पुट करते हैं, यहाँ से मैं बता देती हूँ, इस सीरीज़ में जब x की जगह आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 एज इट इज़ 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी अल्टरनेटिव सीरीज़ -1 रेज़्ड पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। यहाँ से 1 ही आएगा डिवाइडेड बाय 2n-1, तो ये अल्टरनेटिव सीरीज़ भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 अल्टरनेटिव सीरीज़ है, ठीक है। तो यूजिंग अल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सो इट कन्वर्जेस एट x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू -1 पे अगर आप देखें, अगर हमारे पास -1 की पावर n-1 है और x की जगह -1 पुट करेंगे 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n-1, ये हमारे पास बन जाता है -1 रेज़ टू द पावर 3n-2 डिवाइडेड बाय 2n-1, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास
3n-2 भी इसमें देखें, अगर आप 1 पुट करें तो आपके पास 3 - 2 1 आता है, 2 पुट करें तो 6 - 2 4 आता है, ठीक है। फिर आप इसमें 3 पुट करें तो 9 - 2 7 आता है, ठीक है। 4 पुट करें, 4 3 12, 12 - 2 10 आता है। यानी एक आपके पास इवन टर्म आएगी और एक ऑड टर्म, यानी हमारे पास यहाँ पे भी साइंस अल्टरनेट होंगे, ठीक है। तो ये फिर से हमारे पास अल्टरनेट सीरीज बन जाएगी 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7। तो ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है यूजिंग अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट। तो ये दोनों एंड पॉइंट्स पे कन्वर्ज करिए, तो ये हमारे पास कन्वर्ज करेगी फ्रॉम -1 to 1, जिसमें -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उस पर ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। अब सी पार्ट में देख लेते हैं। सी पार्ट हमारे पास है x⁴n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। इस पर रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये जो है इसको हम n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिखते हैं, तो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये टर्म रह जाती है। इसमें जब हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये सीरीज फॉर ऑल x कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेशियो टेस्ट से जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन 1 है, ठीक है। सो फॉर ऑल x दिस सीरीज कन्वर्जेस, x की सारी वैल्यूज के लिए ये कन्वर्ज करेगी। अब हम डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में हमारे पास n फैक्टोरियल x⁴n ये सीरीज है, ठीक है। इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+1 इंटू n फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद दिस। इसमें हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इन्फिनिटी यानी ये डाइवर्ज कर रही है हर जगह एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी एंड 0 इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये सिर्फ 0 पे कन्वर्ज करेगा, यानी जब भी आपके रेशियो टेस्ट से इन्फिनिटी आंसर आता है तो इसका मतलब है कि वो x 0 के अलावा हर जगह पे डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 0 पे ये सीरीज कन्वर्ज करेगी और बाकी x की हर वैल्यू के लिए ये डाइवर्ज करेगी। नाउ कन्वर्जेंस थ्योरम फॉर पावर सीरीज। If the power series this converges for x is equal to c, then it converges absolutely for all x with absolute value of x is less than c. If the series diverges for x is equal to d, then it diverges for all x with absolute value of x is greater than absolute value of d, ठीक है। तो अगर आपके कोई पावर सीरीज सी एक्स की किसी वैल्यू सी पे अगर कन्वर्ज करी है तो वो -c और c के दरमियान हर वैल्यू पे ये कन्वर्ज करेगी, और अगर किसी पॉइंट d पे डाइवर्ज करी है तो d से बड़ी वैल्यूज और -d से छोटी वैल्यूज पे ये डाइवर्ज करेगी। नाउ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। हमारे पास हर पावर सीरीज का कोई ना कोई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। समटाइम्स वो हमारे पास किसी इंटरवल की फॉर्म में होता है, समटाइम्स कोई एक पॉइंट होता है और समटाइम्स वो इनफाइनाइट हमारे पास कोई फाइनाइट इंटरवल नहीं होता, हमारे पास कोई वो इनफाइनाइट इंटरवल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। The convergence of the series this is described by one of the following three possibilities. There is a positive number capital R such that the series diverges for x with absolute value of x minus a is greater than R. ये हमारे पास पावर सीरीज है at a, ठीक है। तो यहाँ पे R बेसिकली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें यहाँ से
पता लगता है। दिस इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये हमारे पास सीरीज डाइवर्ज कब करेगी, जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन r। ठीक है, r इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर x विद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस ए इज लेस देन r। ठीक है, यानी माइनस r और r के दरमियान हमारे पास सीरीज कन्वर्ज करती है। द सीरीज may or may not converge at either of the endpoints x is equal to a minus r and x is equal to a plus r। देखें, इसको जब हम ओपन करते हैं, इसको इंटरवल की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है माइनस आर इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन आर। so this is a minus r is less than x is less than a plus r। ठीक है, तो अब ये एंड पॉइंट्स हैं बेसिकली, a माइनस आर एंड a प्लस आर आर एंड पॉइंट्स। तो हमारा जो सीरीज है वो एंड पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। सेकेंड, द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर एवरी x if radius of convergence is equal to infinity। ठीक है, अगर हमारे सीरीज सारे x की वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करी है तो इसका मतलब है यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है। थर्ड पॉइंट इज द सीरीज कन्वर्जेस एट x इज इक्वल टू a एंड डाइवर्जेस एल्सवेयर देन r इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हमारे पास किसी एक पॉइंट पे सीरीज कन्वर्ज करती है और बाकी हर पॉइंट पे डाइवर्ज करती है तो वहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 होता है, जस्ट एक ही पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास कोई इंटरवल है तो वो इंटरवल हमारे पास उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, और अगर हमारे पास हर पॉइंट पे x के हर पॉइंट पे सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो वहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटी। और अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है सीरीज, x की किसी एक वैल्यू पे सीरीज कन्वर्ज करी है तो वहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 होगा। तो अगर हम पिछली एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस -1 से 1 तक हो सकता है। आप कह सकते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास 1 है। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जन हमारे पास ये था। ठीक है, तो दिस इज रेडियस ऑफ कन्वर्जन, हियर r इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास 1 था। यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है क्योंकि x की हर वैल्यू पे कन्वर्ज कर रहा है सीरीज। यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट यानी 0 पे कन्वर्ज कर रही है सीरीज, बाकी हर पॉइंट पे डाइवर्ज कर रही है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है। सो नाउ हाउ टू टेस्ट अ पावर सीरीज फॉर कन्वर्जेंस। तो अभी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब उसको समराइज कर लेते हैं कि हमने पावर सीरीज की कन्वर्जेंस को किस तरह से टेस्ट करना है। सबसे पहले स्टेप में तो हमने रेशो टेस्ट या nth रूट टेस्ट यूज करना है टू फाइंड द इंटरवल वेयर द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। Ordinary, this is an open interval. Absolute value of x minus a is less than r। ठीक है, सबसे पहले रेशो टेस्ट या रूट टेस्ट यूज करके हमने ये इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को इंटरवल की फॉर्म में। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इफ द इंटरवल ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज फाइनाइट, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एट एंड पॉइंट्स। यूज कंपैरिजन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट और अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट। अगर तो हमारे पास फाइनाइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, इंटरवल अगर जो यहाँ से हमने फाइंड किया ये अगर फाइनाइट है तो हमने इसके एंड पॉइंट्स पे फिर चेक करना है कि एंड पॉइंट्स पे सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है यूजिंग दीज टेस्ट। उसमें कंपैरिजन टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एंड पॉइंट लेट सपोज किसी एंड पॉइंट पे लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास डाइवर्ज करिए तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगेगा, अगर कन्वर्ज करिए तो वहाँ पे इक्वल का साइन लग जाएगा। ठीक है,
Third step, if the interval of absolute convergence is a minus r is less than x is less than a plus r, the series diverges for absolute value of x minus a greater than r. अगर इस इंटरवल के लिए कन्वर्ज करिए तो इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे डाइवर्ज करेगी सीरीज. ये आपके पास इसकी एक्सरसाइज है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करें. नाउ टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज. बेसिकली हमारे पास टेलर और मैक्लॉरेन सीरीज यूज कब होती है? बेसिकली हम किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, ठीक है. दिस इज अप्रोक्सीमेशन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो यहाँ पे हम डिफरेंट जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस की जब हमने पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन लेनी होती है तो उसके लिए टेलर या मैक्लॉरेन सीरीज हम यूज़ कर सकते हैं. अब देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है. लेट एफ बी द फंक्शन विद डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर थ्रू आउट सम इंटरवल containing a as an interior point, then Taylor series generated by f at x is equal to a is, ये हमारे पास टेलर सीरीज की फॉर्म है, समीशन k is equal to 0 to infinity kth derivative of a at kth derivative of f at a divided by k factorial multiply by x minus a whole power k. ठीक है, तो इसमें अगर जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0th डेरिवेटिव एट ए यानी एफ ऑफ ए 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा. इसी तरह सेकेंड टर्म क्या होगी? फर्स्ट डेरिवेटिव एट ए विद एक्स माइनस ए विद पावर 1. इसी तरह ये हमारे पास इसकी टर्म्स बनती जाएंगी, इनफाइनाइट टर्म्स. नाउ कम टू द मैक्लॉरेन सीरीज. Maclaurin series is basically a special form of Taylor series. Taylor series is generated by f at x is equal to a and Maclaurin series is generated by f at x is equal to 0. अगर हम यहाँ पे a को 0 कर दें तो ये टेलर सीरीज मैक्लॉरेन सीरीज बन जाती है. ठीक है, बाकी फॉर्म सेम ही है. यहाँ पे जस्ट हमारे पास ये x माइनस a है तो a की जगह 0 है तो ये हमारे पास x पावर k रह जाता है. ठीक है, तो टेलर सीरीज इज जनरेटेड बाय f एट x इज इक्वल टू a एंड मैक्लॉरेन सीरीज इज जनरेटेड बाय f एट x इज इक्वल टू 0. In example 1, find the Taylor series generated by f of x is equal to 1 by x at a is equal to 2 where if any where does the series converge to 1 by x. अब यहाँ पे हमने 1 by x की टेलर सीरीज फाइंड करनी है एट a इज इक्वल टू 2 और फिर हमने वो जो सीरीज फाइंड की उस देखना है कि वो सीरीज 1 by x को कन्वर्ज करती है या नहीं. किसी भी सीरीज के कन्वर्ज करने का मतलब है कि उसका सम एग्जिस्ट करना चाहिए, तो जो भी उसका सम होता है उस पॉइंट को वो कन्वर्ज कर रहा होता है, यानी जो भी सीरीज हमने फाइंड किया उसका सम 1 by x होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें डेरिवेटिव्स की ज़रूरत है एट 2. तो फंक्शंस के डेरिवेटिव पहले हम लेते हैं. फर्स्ट आपके पास फंक्शन है 1 by x. ठीक है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव 2 फैक्टोरियल 1 by x क्यूब एंड सो ऑन. ये हमारे पास सारे डेरिवेटिव्स आ जाते हैं. अगर आप इसके पैटर्न को देखें तो ये हमारे पास बनता है, यहाँ पे साइंस ऑल्टरनेटिव चल रहे हैं तो -1 पावर n, उसके बाद हमारे पास n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है और x की पावर हमारे पास -n+1. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास f इसमें 2 पुट करेंगे, f ऑफ 2 x की जगह 2 पुट कर लेंगे. ठीक है, f प्राइम की जगह f प्राइम ऑफ 2 ये आ जाएगा. इस तरह हर डेरिवेटिव एट पॉइंट 2 हम लोग फाइंड कर लेंगे. ठीक है, ये बेसिकली हमने डेरिवेटिव और साथ में ये जो टर्म्स हैं ये वाली टर्म्स, ठीक है, ये टर्म्स हम लोग बेसिकली फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, ये वाली टर्म्स सिर्फ डेरिवेटिव नहीं, ये पूरा हमारे पास जो कोफिशिएंट है x माइनस a का ये सारा हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमने कोफिशिएंट्स फाइंड कर लिए हैं. अब ये कोफिशिएंट्स हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है,
तो ये हमारे पास साथ में ये चीज़ें मल्टीप्लाई होती जाएंगी, इनकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट की है, तो ये हमारे पास इसके nth टर्म को अगर हम इस पैटर्न को देखें तो -1 पावर n फॉर अल्टरनेटिव सीरीज, उसके बाद x -2 की पावर n आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 2 की पावर है दिस इज n+1, ठीक है। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि ये इस सीरीज का सम 1/x के इक्वल आता है या नहीं, क्योंकि ये 1/x की हमने पॉलिनोमियल सीरीज फाइंड की है, ठीक है। सो दिस सीरीज इज बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज विद a इज इक्वल टू 1/2 एंड r रेशो आप ले लें, इन दो टर्म्स का रेशो ले लें, तो ये हमारे पास बन जाता है -x -2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज r रेशो, ठीक है। तो सम हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या होता है, a डिवाइडेड बाय 1 - r, इसमें वैल्यूज पुट करें, ठीक है, तो ये हमारे पास 1/x आ जाता है। इट मीन्स के दिस सीरीज कन्वर्जेस टू 1/x, इस सीरीज का सम 1/x है। और ये सीरीज x की किन वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करेगी, यहाँ पे देखें हमारे पास x -2 डिवाइड बाय 2 इज लेस देन r। ज्योमेट्रिक सीरीज हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज करती है, तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r को लेस देन 1 पुट किया, ये हमारे पास x -2 इज लेस देन 2 एंड x इज फ्रॉम 0 to 4, तो 0 to 4 के लिए ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। टेलर पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, अभी तक हम जो टेलर और मैक्लॉरन सीरीज देख रहे थे वो हम इनफाइनाइट पॉलिनोमियल डिग्री की उसमें देख रहे थे, इनफाइनाइट सीरीज फाइंड कर रहे थे। अगर हमने फाइनाइट सीरीज फाइंड करनी है, यानी कुछ डिग्री की पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है, nth डिग्री पॉलिनोमियल, तो इसमें हमारे पास हम लोग फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं, सेकंड डिग्री भी, थर्ड डिग्री भी, तो उसके लिए हमारे पास फिर ये फॉर्मूला होगा। यानी पहले हम लोग स्टॉप नहीं करते थे, यहाँ पे इसको कंटिन्यू रखते थे, यहाँ पे हम इसे किसी स्पेसिफिक डिग्री पे रोक देते हैं। Find in example 2, find the Taylor series and Taylor polynomials generated by f of x is equal to e power x at x is equal to 0। ये बेसिकली मैक्लॉरन सीरीज हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जब x is equal to 0 होता है तो उसको हम मैक्लॉरन सीरीज बोलते हैं, टेलर सीरीज भी है, इसको मैक्लॉरन सीरीज भी बोल सकते हैं। पहले हम इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। f of x is e power x, इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव e power x, इसके सारे डेरिवेटिव्स e power x के इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेल्फ डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब हम इसमें 0 पुट करेंगे, 0 पुट किया तो 1 1 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास टेलर सीरीज है एट 0, इसमें हम f of 0 की वैल्यू पुट करते हैं 1, f प्राइम ऑफ 0 इज ऑल्सो 1, साथ में x आ रहा है, ये सारी वैल्यूज हमने इसमें सब्स्टिट्यूट की, तो ये हमारे पास सीरीज आ गई, ठीक है। इस सीरीज को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका अगर आप पैटर्न देखें तो ये बेसिकली इफ k इज इक्वल टू 0 to infinity x पावर k, ठीक है, x की पावर इंक्रीज होती जा रही है, डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। दिस इज ऑल्सो मैक्लॉरन सीरीज फॉर e पावर x, तो ये हमारे पास e पावर x की मैक्लॉरन सीरीज है, ठीक है। ये हमारे पास इसके पॉलिनोमियल, अगर हमने इसकी nth डिग्री पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ये इनफाइनाइट सीरीज थी, nth डिग्री पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना है तो वो हम nth डिग्री पे इसको स्टॉप कर सकते हैं। Similarly, find the Taylor series and Taylor polynomial generated by f of x is equal to cos x at x is equal to 0, ठीक है। यहाँ पे भी हम मैक्लॉरन सीरीज फाइंड कर रहे हैं cos x की, तो इनके डेरिवेटिव्स पहले लिए, cos x पहले फंक्शन लिया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन x, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस cos x, थर्ड डेरिवेटिव साइन x एंड सो ऑन, ठीक है। यानी हमारे पास इसके जो इवन नंबर डेरिवेटिव्स हैं वो अल्टरनेटिव साइन के साथ आ रहे हैं और cos x के साथ हैं, और जो ऑड नंबर डेरिवेटिव हैं वो भी अल्टरनेटिव साइन के साथ आ रहे हैं और विद साइन x है, ठीक है। अब एट x इज इक्वल टू 0 इनकी वैल्यूज देखेंगे तो हमारे पास cos 0 1 होता है, ठीक है। यानी हमारे पास जो इवन
डेरिवेटिव इवन ऑर्डर डेरिवेटिव हैं वो -1 की पावर n है, ठीक है। और ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हैं साइन 0 0 होता है तो वो सारे हमारे पास 0 हो रहे हैं, ठीक है। तो टेलर सीरीज ये होती है हमारे पास एट x इज इक्वल टू 0, या इसको हम मैक्लॉरेन सीरीज भी बोलते हैं। इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो ऑड पावर वाली टर्म्स हैं वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वैनिश हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ इवन पावर वाली टर्म्स रह जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, साथ में साइंस ऑल्टरनेट चल रहे हैं, -1 पावर k और x की पावर 2k रिप्रेजेंट्स इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2k फैक्टोरियल, 2k रिप्रेजेंट्स इवन नंबर। ये हमारे पास cos x की टेलर सीरीज है। अब यहाँ पे अगर हम इसके पोलिनोमियल nth डिग्री पोलिनोमियल को डिस्कस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू nth डिग्री। ये हम लोग nth डिग्री तक इसको ले आए, ठीक है। दिस इज एक्सरसाइज रिलेटेड टू टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरेन सीरीज। इसको आप सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।